परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. एक बार फिर परमेश्वर कृपा से दिल्ली कन्वेंशन में लेके आया By God's grace, once again He brought me to Delhi Convention. और इस तरह परमेश्वर ने अवसर दिया उसका वचन सुनाने के लिए। And God has given me a chance to speak the word of God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. सो समय काफी हो चुका है, काफी बातें बोलने के लिए है, लेकिन अबे कुछ नहीं बोलते, This वचन को ध्यान करते हैं। Let's meditate the word of God. हबक्कूक की पुस्तक उसका 3 अध्याय 17 और 18 वचन। In the book of Habakkuk, chapter 3, verse 17 and 18. हबक्कूक की पुस्तक 3 अध्याय 17 और 18 वचन जब हम पढ़ते हैं, Habakkuk, chapter 3, verse 17 and 18. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vine, and the labor of the olive fail, and the fields shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. परमेश्वर, ठीक है, बस परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर कहलाता है। God is giving us a word of blessing. नो, परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर कहलाता है। Our God is a God of blessings. और परमेश्वर की हार्दिक इच्छा हम सब के लिए यही है कि वो हमें हर तरह से आशीष करे। It is the God's desire that God would bless us in all ways. वो हर तरह से हमें आशीष करे, यही उसकी हार्दिक इच्छा है। God's desire is that He would bless us in all ways. चाहे एक तरफ परमेश्वर चाहता है वो हमें आशीष करे, Though God wants to bless us in one way, लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर चाहता है हम ना सिर्फ आशीषों के लिए उसके पास आए और आशीषों के कारण उसमें खुश रहें, it is not only that God is wanting us to come to Him for blessings and that we would be only be happy for the blessings which He is giving. वरन परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर में हर समय खुशी मनाने वाले हों। And God wants us to be always happy in Him. सो अगर हम आशीषों से भर के परमेश्वर को देखने वाले होंगे, उस पर भरोसा रखने वाले होंगे, उसमें खुशी मनाने वाले होंगे, आशीषें हों व ना हों, हम प्रभु में खुश रहेंगे। Whether we have blessings or not, we should always depend upon Him and be happy in Him. इसलिए अभी 2 वचन जो हम आपके सामने पढ़े हैं, Now the 2 verses which we read before you, हबक्कूक की पुस्तक 3 अध्याय 17 और 18 वचन। when we read from Habakkuk chapter 3 verse 17 and 18, 17 वचन में 4 तरह की आशीष के बारे लिखा हुआ है। we see 17 वचन में in the 17th verse we see of a blessing there. 4 प्रकार की 4 तरह की आशीष के बारे लिखा हुआ है। We see there 4 kinds of blessings. और 18 वचन में हम क्या देखते हैं? In the 18th verse, what do we see? हबक्कूक चाहे इसके विपरीत परिस्थितियों में था, Habakkuk was in a condition which is against this condition. तो भी वो कहता है मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा। Even then he says that I will rejoice in the Lord. मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में मगन रहूंगा। And I will joy in the God of my salvation. आपके लिए मैं 18 वचन पढ़ता हूं। I will read for you the verse 18. तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न होऊंगा। Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. हबक्कूक को देखिए,
जिन 4 तरह की आशीषों का जिक्र 17 वचन में किया हुआ है, The 4 kinds of blessings which are seen in chapter verse 17. चाहे हबक्कुक इन चारों प्रकार की आशीषों के विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहा था, Habakkuk was facing a situation which are against these 4 kinds of blessings. तो भी वो कहता है मैं अपने परमेश्वर में आनंदित रहूंगा, Even then he says that I will rejoice in the God of my salvation. मैं परमेश्वर में हमेशा मगन रहूंगा। I will always rejoice in the Lord. जानते हो, जो लोग हर विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु में खुश रहते हैं, The people who are always happy in the controversial situations, वे लोग अपने बल को कभी भी नष्ट नहीं करते। those people will never lose their strength. चाहे आशीषें हो व ना हो, Whether there is blessings or not. वे अपने अंदरूनी बल को, भीतरी बल को कभी भी नष्ट नहीं करते। They will never destroy the inner strength. और इन दिनों में देखने से बहुतों का भीतरी बल इसलिए नष्ट हो चुका है, In these days we see the strength of certain people, they lose their inner strength. बहुतों का भीतरी बल इसलिए नष्ट हो चुका है The reason for their losing their inner strength is क्योंकि लोग प्रभु में आनंदित होने के बदले, उसमें मगन होने के बदले, वे कुछ आशीषों में मगन होना चाहते हैं, और जब वो आशीषें नहीं रहती तब वे निराश हो जाते हैं और अपने अंदरूनी बल को खो जाते हैं। because they are depending upon the blessings which God has given and they are not happy in the Lord. When they face some trials, they are getting discouraged. मेरा विचार है वही लोग निराश होते हैं और अपने भीतरी बल को नष्ट करते हैं जिनको अब तक उद्धार के बारे पता नहीं, उद्धारकर्ता परमेश्वर का पता नहीं। According to me, those who are not saved and those don't have the joy of this salvation, those people will get discouraged. अगर आप परमेश्वर ने हमें दिए हुए उद्धार को समझ लोगे और उद्धारकर्ता को समझ लोगे, मेरे विचार के अनुसार आशीष हो व ना हो, हर परिस्थिति में आप उसमें मगन रहोगे। According to me, those who don't know their Savior, those who don't have this joy of salvation, they only have a discouragement in their life. क्यों मैं ऐसा कहता हूं? Why do I say like this? क्यों मैं कहता हूं हम उद्धार को पहचानना है? Why do I say that we have to understand our salvation? उद्धारकर्ता को समझना है। We have to understand our Savior. कारण हमें जो उद्धार मिला है, The one who has to give us salvation, हमें जो उद्धार मिला है, इसके द्वारा परमेश्वर ने अपना बड़ा प्रेम, महान प्रेम हमें दिखाया है। because of the salvation, the great love of God is coming to us. महान प्रेम को परमेश्वर ने हमारे उद्धार के द्वारा प्रकट किया है, दिखाया है। The great love of God which He has showed us through this salvation. रोमियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 7 वचन जब मैं पढ़ता हूं, ये वचन जब कभी भी मैं पढ़ता हूं मुझे बहुत ही कचोटता है। When we read from Romans chapter 5 verse 7, जब कभी भी इस वचन को मैं पढ़ता हूं, whenever I read this verse, ये वचन मुझ पर ऐसा प्रभाव डालता है कि कितनी बार इस वचन के कारण मैं बंध गया हूं, वहां टूट गया हूं। whenever I read this verse touches me and it breaks my heart. इस वचन में लिखा है किसी धर्मी इंसान के लिए कोई बलिदान हो, कोई मरे, ये दुर्लभ है। We read that if for one righteous, scarcely for a righteous man will one die. दोबारा सुनिए, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये दुर्लभ है। It is said that for scarcely for a righteous man one will die.
सो अगर धर्मी के लिए कोई मरने वाला नहीं है, Nobody will die for one righteous. अगर धर्मी के लिए कोई मरने वाला नहीं है, If for righteous nobody is ready to die, तो विचार कीजिए एक पापी इंसान के लिए कौन मरेगा? and for a sinner who will die? पापी इंसान के लिए, हारे हुए इंसान के लिए, अधर्मी इंसान के लिए कौन मरेगा? For a sinner, for an unrighteous person, who will ever dare to die? और हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता मैं पापी नहीं था, मैं अधर्मी नहीं था। None of us can say that I'm not a sinner, I'm not an unrighteous person. वचन कहता है हम सब के सब पापी इंसान थे। The word of God says, all have sinned. जैसा लिखा हुआ है, एक इंसान के द्वारा पाप इस दुनिया में आया और पाप के कारण मृत्यु आई, और ये मृत्यु सारे मनुष्यों में इस कारण फैल गई चूंकि सब ने ही पाप किया। For because of the sin of one man, death has entered into man, and it has crept into the whole world. सो हम सब के सब पापी इंसान थे। We all are sinners. इसलिए यशाया में भी लिखा हम सब के सब बेरों के नहीं भटके हुए लोग थे। As it is written in the book of Isaiah, we are all as sheep which are gone astray. सो सब लोग भटके थे, एक भी ऐसा नहीं था जो भटका हुआ नहीं था। We cannot say there was not even a one person, but all have sinned and come short of the glory of सो God. जब हम सब पापी इंसान थे, हारे हुए इंसान थे, अधर्मी इंसान थे, तो विचार कीजिए हम पापियों के लिए कौन मरता? Because we were sinners, just imagine and see who would one ever dare to die for a sinner. अगर धर्मी इंसान के लिए कोई मरने वाला नहीं, तो पापी इंसान के लिए कौन मरेगा? If anyone would scarcely die for a righteous man, then who will dare to die for a sinner? एक ही शब्द में हम उत्तर दे सकते हैं, पापी के लिए कोई भी नहीं मरेगा। Understand this one thing, nobody will die for a sinner. लेकिन 8 वचन में, रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय 8 वचन में लिखा, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर यूं प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। But God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. सो प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी मुक्ति के लिए, मेरे और आपके उद्धार के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। Jesus, for the salvation of you and me, He had died upon the cross. इसलिए पहला पत्रस 2 अध्याय 24 वचन जब हम पढ़ते हैं, Reading from 1 Peter chapter 2 verse 24. पहला पत्रस 2 अध्याय 24 वचन के अनुसार परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें वो 3 वरदान दिए हैं, 3 आशीषें दी है, जिसे इस दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है। Here we read from First Peter chapter 2 verse 24. We see that who His own self bare our sins in His own body on the tree, that we being dead to sin should live unto righteousness. सो जहां पे 3 वरदानों के बारे में लिखा है जिसे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें मिले हैं, And these things are received through Jesus Christ. 3 वरदानों के बारे लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिले हैं। There are written about certain promises which we receive by Jesus Christ. और इन 3 बातों को हम इस तरह भी देख सकते हैं, And these three things we also can see. ये 3 बातें ही आज सारे लोगों के लिए एक बड़े प्रश्न की तरह हैं। And these things are seen as a big question mark before all men. पहली बात क्या है? What is the first thing? हर इंसान पाप से मुक्ति चाहता है, पाप से छुटकारा चाहता है। Every man wants to get deliverance from sin. सो दुनिया में देखिए लोगों का विचार है मैं पाप से मुक्ति पाने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए वगैरह वगैरह ये सब करना चाहिए। And he, for the remission of his sins or to get deliverance from sin, he has to do these certain things. लोग तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, People go to ritual places, पिलग्रिम्स, pilgrimage. लोग तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, They go on a pilgrimage. और लोग कई तरह अपने शरीर को भी कष्ट देते हैं। They give strain to their body. कई साधु संतों को देखिए वे जंगलों में जाते हैं और अपने शरीर को किस तरह वेदना देते हैं। We see of certain saints
who give trouble to their body and they go to jungles and go to the mountains. सो लोग वगैरह वगैरह इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरह हम पाप से छूट जाए, पाप से मुक्ति पाए. So somehow or the other, they would get deliverance from their sin. लेकिन इंसान अपने किसी भी प्रयत्न के द्वारा अपने पाप से नहीं छूट सकता. But man, because of his own efforts, he cannot get deliverance from sin. जो लोग पाप से छूटने के लिए कई तरह के यत्न प्रयत्न कर रहे हैं, कई तरह के और कई कार्य कर रहे हैं, आप उनको पूछ के देखिए, वे आपको कहेंगे हम पाप से छूटे नहीं है. People do so many things and follow so many methods, even then they cannot get deliverance from sin. एक दिन मेरे पास कुछ लोग आए, वे गैर लोग थे, अन्य लोग थे, और मेरे पास आके कहने लगे अब हमें उद्धार मिला है. Some people came to me, they were not Christians, they came and asked me as to how to get salvation. मैंने एक शब्द भी उन्हें पूछा, क्या आप पूरी तरह पाप से मुक्ति पा चुके हो? Then I asked him, did you get deliverance from your sin completely? पूरी तरह अपनी बुराई से, अपने पाप से मुक्ति पा चुके हो? I asked them, did you completely receive deliverance from sin? तब वे चुप रह गए. They were silent. कारण, What is the reason? चाहे एक तरफ वे मुक्ति का नाम ले रहे थे, लेकिन वे अब तक भी अपने पापों से मुक्ति नहीं पाए थे. Though they take the word of deliverance, but they are not getting deliverance from sin. सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, दुनिया में मुक्ति का रास्ता सिर्फ एक ही है, एक ही प्रसाधन है जिसके द्वारा हम मुक्ति पा सकते हैं. So dear people of God, there is only one way for salvation, that is through Jesus Christ. इसलिए पहला पत्र 2:24 में लिखा, उसने आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर बलिदान हुआ, ताकि हम पाप से मरकर अर्थात पाप से छुटकारा पाएं. Here we read in 1 Peter chapter 2 verse 24, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes we were healed. सो लिखा, हम पाप से छुटकारा सिर्फ यीशु के सलीबी बलिदान के द्वारा प्राप्त पाते हैं. We can get deliverance from sin only through the sacrifice which Jesus did in his body. लिखा, उसने हमारे पापों को अपनी देह पर उठा लिया और क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर बलिदान हुआ, ताकि हम पाप से छुटकारा पाए. Jesus Christ took all our sins upon his body and was crucified so that we can get deliverance from sin. सो ये वरदान यीशु के द्वारा हमें प्रदान हुआ है. This was possible only through Jesus. दूसरा लिखा, हम धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें. Secondly, we were asked to live a righteous life. धार्मिकता का जीवन व्यतीत करना ये भी मनुष्यों के लिए एक बड़े सवाल की तरह है. To live a righteous life, this is also given to man. दुनिया में देखिए, लोग चाहे अपने अपने विचारों के अनुसार, अपने अपनी सोच के अनुसार एक धर्मी जीवन व्यतीत करते हैं. People live a life according to what they wish or according to what they think. सो वो उनकी अपनी धार्मिकता है. And it is their own righteousness. लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार जीवन व्यतीत इंसान तब ही कर सकेगा अगर वो पाप से मुक्ति पाएगा. A person can live a righteous life only when he get deliverance from sin. क्योंकि पाप से मुक्ति पाने से ही एक इंसान को परमेश्वर की धार्मिकता का प्रकाश होता है, और परमेश्वर की धार्मिकता को समझ के उसमें वो जीवन व्यतीत कर पाता है. A person only when he gets deliverance from sin, that he can live and get an understanding about the righteousness of God and can live according to it. और तीसरा लिखा, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए. Thirdly, we see that by whose stripes ye were healed. इसका अर्थ क्या है? What is the meaning of this? इस दुनिया में इंसान की बड़ी समस्या, बड़ा सवाल उसकी तंदुरुस्ती है, उसकी चंगाई है, और इंसान चंगाई के लिए क्या क्या नहीं कर रहा. और वचन कहता है, यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए. The word of God says that because of his stripes he were healed. People in this world, for their healing, they do whatever, they try all the means. आज दुनिया में देखिए,
कैसी कैसी बीमारियां हैं, कैसे कैसे रोग हैं, कैसी कैसी दुर्बलताएं हैं। हॉस्पिटलों को देखिए, चाहे बहुत से हॉस्पिटल हैं, वे भी कम इसलिए हैं क्योंकि प्राय लोग बीमार हैं। And people in these days, there are so many different hospitals and different kinds of diseases we see. अधिकांश लोग बीमार हैं, इसी वजह से हॉस्पिटलों में भी जगह नहीं है। Because most of the people are sick, that's why there is no place in the hospitals also. लोग अपनी तंदुरुस्ती चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं। वचन में लिखा, यीशु के कोरे खाने से हम चंगे हो गए हैं। People wants healing, they want good health. The word of God says, by his stripes he were healed. यीशु मसीह ने हमारी चंगाई का प्रावधान भी किया है, उसने धार्मिकता के जीवन का भी प्रावधान किया है और पापों की मुक्ति का भी प्रावधान किया है। Jesus also gave us righteousness and he has given deliverance from all our problems. यदि हम यीशु मसीह के इस प्यार को समझ लेंगे कि कैसे उसने अपना प्रेम हमारी मुक्ति के लिए दिखाया है, चाहे आशीष हो व न हो, हम उसमें आनंदित रहेंगे। Whether it is a blessing or righteousness, we can only get through Jesus Christ. एक बात और मैं आपको कहता हूं, One more thing I want to say. वचन में हम पढ़ते हैं, एक ऐसा समय वचन में हम पढ़ते हैं जब यीशु इस दुनिया में था। In the word of God we see that when Jesus was in this world, तो 4 व्यक्ति एक लकवे के मारे हुए व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लेके आए। a person who was sick of palsy was brought before Jesus. जब यीशु मसीह ने उन चारों व्यक्तियों के विश्वास को देखा और उस लकवे के मारे हुए व्यक्ति से कहा, पुत्र ढाढ़स बांध, चूंकि तेरे पाप क्षमा हुए हैं। When we see the 4 persons who has let down the man who was sick of palsy, when Jesus seeing their faith, Jesus says that your sins are forgiven thee. पुत्र ढाढ़स बांध, चूंकि तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। My son, be of good courage, your sins are forgiven. जब यीशु मसीह ने इस तरह कहा तो वचन में हम पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने ही भीतर यीशु मसीह पर दोष लगाते हुए ये कहने लगे, ये कौन है जो पापों को क्षमा कर रहा है? People who were around, they were saying, who is this man who has authority to forgive sins? आप दया करके मत्ती का सुसमाचार 9 अध्याय में पढ़ के देख सकते हो। When we read from Matthew chapter 9, we can see this incident. 9 अध्याय उसका पहले वचन से लेके अगर आप 6-7 वचन तक पढ़ोगे तो आपको ये सारी कहानी वहां मिल जाएगी। When we read from Matthew chapter 9 verse 11 onwards, we can understand this whole incident. जहां पे देखिए, जब यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, पुत्र ढाढ़स बांध, चूंकि तेरे पाप क्षमा हुए। When he said that, my son, your sins are being forgiven. और जब लोग अपने मन में कई तरह के विचारों में थे, बुरे विचारों में थे, यीशु ने लोगों के मन के बुरे विचारों को जानकर उनसे पूछा, कौन सी बात सहज है? 5 वचन में लिखा, यीशु ने पूछा, कौन सी बात सहज है? क्या ये कहना सहज है कि तेरे पाप क्षमा हुए, व ये कहना सहज है कि उठ और चल फिर? When we read in the verse 5, we see that, for whether it is easier to say, thy sins are forgiven thee, or to say, arise and walk? कौन सी बात सहज है? Which is easier? तेरे पाप क्षमा हुए, ये बोलना सहज है, व इस लकवे के मारे हुए को ये बोलना सहज है, उठ और चल फिर? Here is it easy to say that thy sins are forgiven thee, or to say that rise up and walk? लोगों का विचार था, तेरे पाप क्षमा हुए, ये बोलना बहुत सहज है। Then people thought that it is very easy to say that thy sins are forgiven thee. लेकिन ऐसी दुर्दशा में पड़े हुए व्यक्ति को ये बोलना, उठो चल फिर, ये सहज नहीं है। Then they thought the person who is sick of palsy, it is difficult to say that arise and walk. लेकिन मैं आपको कहता हूं, परमेश्वर के लिए ऐसी दुर्दशा में पड़े हुए व्यक्ति को उठ और चल फिर बोलना बहुत सहज है, लेकिन पापों को क्षमा करना ये बोलना सहज नहीं है। For God, it was easier to say that arise and walk,
but it was difficult for God to say that thy sins are forgiven thee. क्योंकि चाहे इस वचन में हम देखते हैं, इस वचन में हम देखते हैं कि यीशु ने बड़े सहज से कहा है तेरे पाप क्षमा हुए. Jesus Christ in this incident very easily says, thy sins are forgiven thee. लेकिन वचन के अनुसार पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह को इंसान का रूप लेके इस दुनिया में आना पड़ा और उसको हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर बलिदान होके अपना कीमती लहू बहाना पड़ा. For Jesus, it was difficult for him to take up all our sins and die for us on the cross of Calvary and shed his precious blood. इसलिए इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय 22 वचन में लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है. We read that without shedding of blood there is no remission of sins. सो यीशु मसीह ने चाहे बड़े आराम से, बड़े सहज से कहा तो है तेरे पाप क्षमा हुए, लेकिन इस क्षमा के लिए उसको अपना जीवन बलिदान करना पड़ा. It was easier to say that thy sins are forgiven him, but it was difficult for him to die upon the cross for the remission of our sins. इसलिए परमेश्वर की कृपा से मैं हमेशा कहता हूँ, जिस परमेश्वर ने हमारे पाप क्षमा कर दिए, जो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, वो परमेश्वर हमारी बीमारियों को क्यों नहीं चंगा कर सकता. The Lord who has died for us and gave his life upon the cross of Calvary, it is easiest for him to heal us of our sickness also. अगर परमेश्वर हमारे पापों को माफ कर सकता है तो हमारी बीमारी से हमें क्यों नहीं चंगा कर सकता. If God can forgive our sins, why can he not heal us of our sickness? लेकिन दुख की बात क्या है? What is the other thing? दुख की बात क्या है? ग्रीवियस थिंग. दुख की बात क्या है? What is the grievous thing? लोग बीमारी को बढ़ के समझते हैं, पाप क्षमा होने को बढ़ के नहीं समझते. लोग बीमारी को बढ़ के समझते हैं. They will think that sickness is great. बीमारी को बहुत बड़ा समझते हैं. Sickness is a very great thing. लेकिन पापों की क्षमा को लोग बढ़ के नहीं समझते. And the forgiveness of sin, they don't consider it as a great thing. पापों की क्षमा बढ़ के है, ये जरूरी है, ये इसे हम पाना बहुत ही जरूरी है, इसको भी बढ़ के नहीं समझते. Forgiveness of sin is a very great thing. They don't consider it as a great thing. इसलिए इन दिनों में दुनिया में देखिए, चंगाई के लिए लोग कहां कहां नहीं भाग रहे, कहां कहां नहीं दौड़ रहे, क्या क्या नहीं कर रहे, लेकिन क्षमा के लिए, माफ कीजिए, पापों की क्षमा के लिए लोग कुछ भी नहीं करते. And people for the healing, they run to this here and there, they run and do all that somebody tells them. But for the remission of sins, what are you doing? अगर जहां पर ही सारे दिल्ली में हम अनाउंसमेंट करें, जहां आपकी सारी बीमारियों से चंगाई आपको दी जाएगी, चंगाई के लिए आ जाओ, देखिए जहां कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन अनाउंसमेंट क्या है? पापों की क्षमा का प्रचार जहां किया जा रहा है, लोगों को इसके लिए कोई भी ध्यान नहीं है. When the great people gather, they gather in camps for the healing. But when there are some gathering which says that thy sins has to be forgiven thee, the gathering there is small. हमारे नोटिस में, जानकारी पत्र में क्या लिखा हुआ है? सुसमाचार का प्रचार, यानी कि पापों की क्षमा का प्रचार, और ईश्वरीय चंगाई वो दूसरे नंबर में है. पापों की क्षमा का प्रचार. लोग इसलिए जहां इकट्ठे नहीं होते क्योंकि पापों की क्षमा को लोग बढ़ के नहीं समझते. The people where the forgiveness of sin is preached, people don't gather there, but for the healing people gathered a lot. क्योंकि लोगों का विचार क्या है? चंगाई, तंदुरुस्ती, यही बढ़ के है, पापों की क्षमा ये बढ़ के है. ऐसा नहीं है. People think that the healing in the body is more important than the remission of the sin, but it is not so. इसलिए लोग पापों की क्षमा को ना तो बढ़ के समझते हैं और ना ही क्या है, इसके लिए कोई ध्यान पूर्वक है. People think that the healing in the body is more important than the remission for their sins. जानते हो, अगर आपके पाप क्षमा नहीं होंगे, अगर आप अपने पापों से माफी नहीं पाओगे, आप हरगिज परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे. If you don't have the remission of your sins or the forgiveness of your sins, you cannot go to the kingdom of God. बच्चों में सांप पढ़ते हैं,
जो पुरानी पाप करेगी वो निश्चय एक दिन मरेगी। वचन में साफ पढ़ते हैं, जो भी व्यक्ति पाप करेगा वो एक दिन जरूर मरेगा। The word of God says that he that sinneth will definitely die. इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। That's why the word of God says the wages of sin is death. सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, पापों की क्षमा बीमारियों की चंगाई से भी बहुत अधिक जरूरी है। That's why I say that the healing in the body, more than that, the remission of our sins are more important. सो यदि आप ये समझ लोगे मेरे पाप क्षमा हो गए, आप प्रभु में खुश रहना सीख जाओगे। If you say that your sins are forgiven, you are a very blessed person. जिस व्यक्ति को ये प्रकाश हो गया, ज्ञान मिल गया, परमेश्वर ने मेरे पाप क्षमा कर दिए और मेरे पापों को क्षमा करके मुझे उसने जिलाया है, जिंदा किया है और जीवित आशा मुझे दी है, वो व्यक्ति आशीष में खुश नहीं रहेगा, वरन परमेश्वर में खुश रहेगा। The person who says that Jesus has forgiven me my sins, he can be happy in the blessing God has given him. इसलिए हबक्कूक कहता है, चाहे इत्यादि इत्यादि ये सब आशीषें ना भी हो, तथापि मैं अपने प्रभु में मगन रहूंगा, खुश रहूंगा, उसमें आनंदित रहूंगा। That's why Habakkuk says that so and so things, even if I don't have so and so things, I will be happy or I will rejoice in the God of my So देखिए, हबक्कूक पुराने नियम का एक व्यक्ति था। हो सकता है उसके पास उद्धार का अनुभव हो व ना हो, लेकिन उसके शब्दों से हम समझ सकते हैं उसने उद्धारकर्ता को समझ लिया, उद्धार को समझ लिया, पापों की क्षमा को समझ लिया। इसलिए वो कहता है, चाहे मैं इन आशीषों के विपरीत परिस्थितियों में हूं, तथापि मैं अपने प्रभु में खुश रहूंगा। That's why Habakkuk says, all the blessings which he get, though he did not know about salvation or the joy of salvation, he says, even if I have all things contrary to this, I will rejoice in the God of my salvation. मैं चाहे इन आशीषों के विपरीत हूं, मैं अपने परमेश्वर में खुश रहूंगा। Though I live a life contrary to these blessings, I will rejoice in the God of my salvation. सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम आपको प्रचार करते हैं, इतना ही केवल नहीं है, परमेश्वर की कृपा से खुद भी हर परिस्थिति में, हर विपरीत परिस्थिति में अपने परमेश्वर में खुश रहते हैं। Dear people of God, even things are contrary to it, you should always rejoice in the God of your salvation. आपको हम प्रचार करते हैं, सिर्फ इतना नहीं है। Not only We are preaching to you, इतना ही केवल नहीं है, not only we are preaching to you, लेकिन हम इसे अपने अनुभव में ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। and we all experience these things. That's why we say, परमेश्वर की कृपा से हम हर विपरीत परिस्थिति में इसलिए खुश हैं क्योंकि हमने अपने परमेश्वर के द्वारा उद्धार को पाया है, क्षमा को पाया है, जीवित आशा को पाया है। we have received forgiveness, we have received the joy of salvation, and we rejoice in God even in our adverse situations. सो उसके द्वारा हमें मुक्ति मिली है, आशा मिली है, इसलिए हर परिस्थिति में हम उसमें आनंदित हैं। इसलिए आशीषें हो व ना हो, हम उसमें खुश हैं। Whether we have blessings or not, we always rejoice in the God of our salvation. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. सो झट से मैं इन 4 तरह की आशीषों के बारे आपको बताता हूं। I want to tell you about the blessings. सबसे पहले भौतिक व संसारिक आशीषों को देखते हैं। Let us see of the worldly blessings. भौतिक और संसारिक आशीषें जो हैं, उनकी तुलना भेड़ सालों में भेड़ बकरियां और गाय बैलों के साथ की गई है। And the worldly blessings are compared with goats and sheep and olives. इसलिए 17 वचन के अंत में लिखा है, भेड़ सालों में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हों। Here we read that though the folds be cut off and the herds in the stall, I will rejoice in the Lord. सो जहां पे भेड़ बकरियां और गाय बैल ये भौतिक और संसारिक आशीषों का नमूना है। Where there the sheep and goat or the oxen, we see that these are compared to worldly blessings. सो परमेश्वर ने
हमें भौतिक और संसारिक आशीषों का भी वायदा दिया हुआ है। God has promised us to give us material and worldly blessings. परमेश्वर हमें भौतिक और संसारिक बाप से भी हर तरह की आशीष से आशीष करता है। God is blessing materially and worldly. God is blessing us. लेकिन जानते हो ये वायदा, ये आशीषें कौन से वायदे के साथ है? And these blessings are which is related to which promise? कौन से वायदे के साथ है? And with what promises these are interlinked? मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 33 वचन में लिखा हुआ है। In Matthew 6 अध्याय, in Matthew 6th chapter, chapter 6 verse 33. 6 अध्याय का 33 वचन में लिखा हुआ है। In Matthew 6:33, what do we see? वहां पे लिखा हुआ है, पहले तुम मेरे धर्म और राज्य को खोजो तो ये सारी बातें तुम्हारे पीछे आ जाएगी। But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. लिखा, पहले तुम मेरे राज्य और धर्म को ढूंढने से ये सारी आशीषें तुम्हारे पास आ जाएगी। If you seek the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. आपको एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ। For the last time I want to tell you, परमेश्वर का राज्य हमेशा सच्ची धार्मिकता के साथ है। the kingdom of God is with true righteousness. और परमेश्वर का राज्य शांति के साथ है। And the kingdom of God is in peace. यही नए नियम में परमेश्वर का राज्य है। And this is the kingdom in the New Testament. पुराने नियम में परमेश्वर का राज्य सच्ची धार्मिकता और शांति के साथ नहीं था। In the Old Testament, it was not with the true righteousness. पुराने नियम की धार्मिकता को जब हम देखते हैं तो वो बहुत ही कठोर और गंभीर धार्मिकता थी। In the Old Testament, when we see of the righteousness, it was very hard and harsh. पुराने नियम की धार्मिकता बहुत ही कठोर और गंभीर धार्मिकता थी। And the Old Testament, it was very harsh and it was very strict. लेकिन नए नियम की धार्मिकता शांति के साथ है। But in the New Testament, it is that righteousness, it is in peace. नए नियम की धार्मिकता शांति के साथ है। And in the New Testament, the righteousness was in peace. और ये शांति 3 तरह से रहनी चाहिए। And this peace is of 3 kinds. सबसे पहले ये शांति परमेश्वर के साथ होना चाहिए। And this peace should be with God. इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं, विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है और परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो जाता है। And through faith, He makes us righteous. अगर आप रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय पहला वचन पढ़ोगे आप समझ सकोगे। In Romans chapter 6 verse 1, when we read that, we can understand. आप माफ कीजिए, 5 अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ है। And in the 5th क्षमा verse, करें, 5 अध्याय के पहले वचन में लिखा है। 5:1 we see that is written there. 5 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. सो लिखा हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं We और are, परमेश्वर के साथ हम मेल मिलाप रखें। we are made righteous through faith. सो परमेश्वर के साथ हमारा मेल होना चाहिए, परमेश्वर के साथ हमारी शांति होनी चाहिए। We should have peace with God. जानते हो क्यों हमारा मेल व शांति परमेश्वर के साथ होना है? Why should we have faith with God? ताकि हम बिना डर से, बिना किसी भय से परमेश्वर के निकट हियाव के साथ आ सके। So that we can come to Him without fear. परमेश्वर के पास इस तरह आ सके जैसे बच्चे अपने माता पिता के पास आते हैं। As the children come to their father, so also we should have boldness to come to Him. सो बिना भय के, बिना किसी डर के परमेश्वर के निकट हिम्मत से आने के लिए हम हमेशा परमेश्वर के साथ मेल से रहना चाहिए। We have to always be at peace with God so that we can come to His presence with boldness. यही परमेश्वर का राज्य है। This is the kingdom of God. यही परमेश्वर के राज्य की सच्ची धार्मिकता है। And this is the true righteousness of the kingdom of God. परमेश्वर के साथ हमारा मेल होना चाहिए। We should have peace with God. सो क्या आपका परमेश्वर के साथ मेल है? Where there is peace with God, जब लिखा है परमेश्वर के राज्य को तुम ढूंढना चाहिए, तब ये सारी वस्तुएं आपके पीछे आ जाएगी। इसका
आप परमेश्वर के साथ अपने मेल मिलाप को ढूंढना चाहिए। We have to be at peace with God. Only then we can receive all the blessings in heaven. सो आपका मेल मिलाप हमेशा परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। That's why we should always be at peace with God. तब आपको परमेश्वर के निकट आने के लिए कोई भय, कोई डर, कोई भी घबराहट, जब कोई भी शंका नहीं रहेगी। Then we will not have any doubt or we will not have any problem. एक बार मैंने एक दर्शन देखा। Once I had a vision. मैंने क्या देखा? स्वर्ग से एक बहुत बड़ी डोरी जमीन पर लटक रही है। Then I saw a great a rope which is coming from heaven to the earth. और उस रस्सी के सहारे एक स्वर्गदूत नीचे उतरा है। And through that rope, one angel was coming down from heaven. और उसने मेरे प्राण को, मेरे जीवन को इस तरह बांध लिया जैसे हम अपने जूते के बांध को बांधते हैं। And that rope was tied to me as the shoe was tied to the rope. जैसे हम अपने जूते के बांध को बांधते हैं, उसी तरह उस दूत ने उस रस्सी से मेरे जीवन को बांध लिया। As the shoelace is tied to the shoe, so also that rope was tied to me. और मुझे झट से स्वर्ग में उठा लिया, ऊपर उठा लिया। And immediately I was taken to heaven. मुझे नहीं पता, मैं अपने आप को बांधते हुए देखा, उस रस्सी के सहारे स्वर्गदूत को उतरते देखा, अपने आप को बांधते देखा। कैसे मैं वहां उठाया गया मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं देखा कि मैं स्वर्ग तक उठा लिया गया। I saw in that vision that a rope was coming down and the angel was coming down through the rope and I was tied to the rope and I was taken to heaven. All these things I was seeing. जब मैं वहां उठाया गया तो मैंने अपने आप को खोलते हुए भी देखा। And I also saw that I was being let loose. जब उस स्वर्गदूत ने मुझे खोला और मैं खुलते ही भागने लगा। When the angel let me loose and I was running. मैं भागने को था, दौड़ने को था। I was about to run. एक स्वर्गदूत ने मुझे कहा, सामने परमेश्वर है, सामने महाराज है, आप दौड़ने को सोच रहा है। Then that angel said, there is a king sitting before you. Are you trying to run? जो ही मैंने सुना परमेश्वर सामने है, एकदम मैं डर गया। एकदम मैं डर गया, मैं वहां ही रुक गया। परमेश्वर सामने है, मैं कैसे उसके सामने जाऊं? I was very afraid and I thought that if God is standing before me, how can I go and face him? And I was afraid. और जब मैं दूर से ही, अभी जहां भाई लोग जहां कुर्सियों में बैठे हैं इतनी दूर, जब मैं इतनी दूर से ही परमेश्वर को देखा, when the distance was as people were sitting in the chair, this much distance was there. So जब मैं इतनी दूर से ही परमेश्वर को देखा, when I saw God from this distance, मुझे उसका चेहरा देखने से लगा, अरे ये तो बहुत ही प्रेमी इंसान है, इसमें तो बहुत ही प्रेम है, प्रेम से भरा हुआ है। और मेरे अंदर का डर, मेरे अंदर का जो भय था, परमेश्वर मैं उसके पास कैसे जाऊं? एकाएक मैं ये समझ के, ये तो बहुत ही दयावान, बहुत ही प्रेमी इंसान है, मैं इसके पास जाऊंगा। When I saw Jesus, he was full of love and he was full of kindness. Then I thought the fear which I had in my heart that departed, and when I came to an understanding as to how good my God is. और मैं बिना डरे, बिना घबराए परमेश्वर के निकट पहुंचा। Without any fear, I went to God. और मुझे परमेश्वर देखते ही उठ के खड़ा होके मेरे कंधे पर ऐसे थपथपाकर पूछने लगा, बेटा क्या तू स्वर्ग में रहेगा? चल बस ठीक है। फिर उसने मुझे पूछा, बेटा क्या तू स्वर्ग में रहेगा? एकाएक मैंने कहा, जी हाँ मैं स्वर्ग में रहूंगा। Then Jesus he said, well done, and he said, will you desire to be with me in heaven? So मैं ये बात आपको क्यों कहा है? Why did I say all this? परमेश्वर का नाम जब हम सुनते हैं, परमेश्वर जब हम कहते हैं, तो हो सकता है हमारे अंदर डर उत्पन्न हो, हमारे भीतर एक भय हो, हम सोचते हो
कैसे हम उसके निकट जाएं, कैसा हम उससे मिलें, कैसा हम परमेश्वर के निकट एक हयाब से हों। When we think of God, we think that how can we go to God? How will He be? All these things cross our mind. लेकिन परमेश्वर हमारा पिता है, वो बहुत ही करुणामय प्रेमी परमेश्वर है। मैं और आप उसके निकट बड़े हयाब से जा सकते हैं, सिर्फ हमारा मेल उसके साथ होना चाहिए। We should have peace with God, then we can boldly go to Him and say that He is a kind God, He is a compassionate God, He is a loving God. क्यों हम उसके निकट जाने के लिए डरते हैं? क्यों हमें भय है? क्यों हम परमेश्वर को ओपरा पराया समझते हैं, मानो वो अन्य है और हम उसके निकट जाना नहीं चाहते? कारण अब तक भी हमारा मेल उसके साथ नहीं हुआ। Because we don't have peace with God, we don't have boldness to go before Him. So जब हमारा मेल उसके साथ हो जाएगा, हमें कोई डर, कोई भय, कोई शंका, कोई घबराहट नहीं रहेगी। हियाव से परमेश्वर के निकट हम ऐसे जाएंगे जैसा मैं अपने दर्शन में परमेश्वर के निकट आराम से चला गया। When we have peace with God, we have a boldness to go before our God. We will not fear, as I told you about my vision. सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के राज्य को ढूंढने का और उसके धर्म को ढूंढने का अर्थ है परमेश्वर के साथ हमारा मेल होना चाहिए, इसे हम ढूंढना चाहिए। We have to be at peace with our God. और फिर दूसरा, हमारा मेल सबके साथ होना चाहिए। And we should follow peace with all men. सो सबके साथ हमारा मेल रहना चाहिए, सब लोगों के साथ हमारा मेल होना चाहिए। We should be at peace with all men. किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बैर, कोई करवाट हमारे हृदय में नहीं रहना चाहिए। We should not have any bitterness, anger or wrath against anybody. देखो, दुख के साथ कहते हैं इन दिनों में हमारे विश्वासी लोग जो कहते हैं परमेश्वर के साथ हमारा मेल है, मुक्ति पाई है, उनके ही हृदयों में कई तरह का विरोध, करवाहट, ईर्ष्या, जलन वगैरह वगैरह है। People who say that we are saved and we have peace with God, they don't have peace with everybody. They have hatred, anger, wrath and such bad things in their life. सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, तीसरा, हमारे अपने भीतर एक शांति होना चाहिए। Thirdly, we should have a peace within ourselves. हमारे भीतर शांति हो, इसका किसी भी तरह की कोई चिंता, कोई व्याकुलता और किसी भी तरह को कोई फिक्र व बोझ हम में नहीं रहना चाहिए। We should not have any trouble or any problems within ourselves. किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं रहना चाहिए। We should not have any type of negative thoughts. इसलिए मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय में जब यीशु मसीह किसी तरह की चिंता नहीं करना, किसी तरह की फिक्र नहीं करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे वगैरह वगैरह, तो ये सारी बातें बोलने के बाद उसने कहा पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म को ढूंढो, तब ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। That's why in Matthew chapter 6 verse 32 we see that what we shall eat, what we shall drink, the unrighteous think of all things, but God says that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So जितना आप परमेश्वर के इस वायदे के अनुसार उसके राज्य और धर्म को ढूंढोगे, जिसे मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है, तब आप भौतिक और संसारिक आशीषों को पा सकोगे। The things which I told you, if you follow all these things, you will receive the blessings in this world. So हम दुनिया की आशीष के लिए परमेश्वर का अनुकरण ना करें, पर परमेश्वर का अनुकरण करें और परमेश्वर हमें आशीष करेगा। And you should ask for God's grace, and through His grace you can receive blessings. So जब हम ऐसा करेंगे, चाहे आशीष हो व ना हो, चाहे इसके विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, हम ये बोल के उसमें आनंदित रहेंगे, सारी बातें मेरी भलाई के लिए है। Whether we have blessings or not, we will say that all things work together for good. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. दूसरा आशीष जो है वो किसे दिखाता है? The second type of blessing, what does it show? दूसरा, खेत में अन्न ना उपजे ऐसा लिखा हुआ है। Even there is no food in the field. सो खेत कलीसिया को दिखाता है। And the field shows the church of God. खेत कलीसिया को दिखाता है 1 कुरिन्थी 3 अध्याय 9 वचन के अनुसार। 1 कुरिन्थी 3 अध्याय 9 वचन के अनुसार खेत
कलीसिया का नमूना है। In 1 Corinthians chapter 3 verse 9 we see that church is compared to a field. फील्ड इज एज ए चर्च इज फील्ड। सो यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 35 वचन जब हम पढ़ते हैं, In 4th chapter 34th verse when we see, वहां पे लिखा हुआ है खेतों में फसल पकी हुई है। we see that there is the harvest, the fields are full of harvest. हाँ, सो इसका वहां पे खेतों में हम अन्न को देखते हैं। We see grains in the field. हाँ, खेतों में अन्न को देखते हैं। We see crop in the field. लेकिन जहां पे लिखा है चाहे खेतों में अन्न ना हो, We see in Habakkuk that though there may be no food in the fields. इसका अर्थ क्या है? What is the meaning? खेत में अन्न ना हो ये सूखेपन को दिखाता है, And these shows dryness. या फिर भूखमरी को प्रकट करता है। And they shows the past. इसका अर्थ क्या है? What is the meaning of it? कई बार हम अपने आत्मिक जीवन में सूखेपन को अनुभव करेंगे। Sometimes in our spiritual life we face certain famine, हम dryness. कलीसिया में आते होंगे You may be coming to the church और नियम अनुसार क्रमानुसार कलीसिया में रहते होंगे, according to the rules and regulations. You may be in the church. तो भी हम एक सूखेपन को अपने में देखते होंगे। We may be seeing a sort of dryness in life. हम कहते होंगे मैं कलीसिया में जाता हूं लेकिन मैं परमेश्वर की आवाज नहीं सुनता और मैं कोई दर्शन नहीं देखता, परमेश्वर मेरे साथ बात नहीं करता। We say that we go to the church, I'm not listening to the voice of God, nor I'm seeing any visions. मेरे आत्मिक जीवन में किसी भी तरह का कोई फल नहीं है। There is no growth in my spiritual life. मेरी सेवा में किसी भी तरह का कोई फल नहीं है। And there is no forwardness in my ministry. सो कई बार इस तरह के परिस्थितियों को हम अनुभव करने के कारण प्रभु में हम खुशी नहीं मनाते होंगे। Because when we face such situations, we cannot be happy in the Lord. लूका का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 17 और 18 वचन जब हम पढ़ते हैं, Luke chapter 10 verse 17 and 18. लूका का सुसमाचार 10 अध्याय के 17 वचन में इस तरह लिखा हुआ है। In Luke chapter 10 we read a verse. 10 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, 70 चेले आनंद से यीशु के पास आकर यूं कहने लगे कि हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हैं। And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subjected unto us through thy name. और 18 वचन में यीशु ने कहा, मैं शैतान को बिजली की नहीं स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूं। And he said unto them, I beheld Satan as lightning falling from heaven. आप ध्यान से सुनिए, इस वचन को आप ध्यान से सुनिए। You carefully listen to this verse. चेलों ने आके यीशु से कहा, तेरे नाम से दुनिया में अधिकार दिया है और तेरे ही नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है। जब हम तेरा नाम लेके किसी भी भूत प्रेत को दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते हैं, यूं ही वो दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाती है। The disciples of God came and told Jesus, whenever we tell thy name, whenever we pray in thy name, the evil spirits are leaving. यीशु ने क्या कहा? What did Jesus say? माफ कीजिए, यीशु ये बात सुन के अपने आप में बहुत खुश नहीं हुआ। Jesus was not happy with that. ओह, मैंने इनको अधिकार दिया, मेरे नाम से ऐसा ऐसा हो रहा, मेरे नाम से हो रहा, वो सुन के खुश नहीं हुआ। Jesus said that I have given you authority in my name, such things are happening. He was not happy with that. मेरे और आप जैसे लोगों को अगर बोल देंगे आपका नाम लेने से ऐसा हो गया, हम खोद खोद के पूछेंगे और क्या हुआ और क्या हुआ और क्या हुआ। When somebody comes and say that some things happened because through your name, then we will ask what else happened, what else happened. खोद खोद के पूछेंगे, इतना हम अपने अंदर ही अंदर खुश हो जाएंगे कि हो सकता हम अपना आप ही खो जाएं। And we will be so happy within ourselves, and maybe we will be lost also. अपना आप ही हम खो जाएं। We will be very happy with that. हम अपना आप ही खो जाएं, We will be lost in us. लेकिन यीशु को देखिए, ऐसा बोलने के बाद भी यीशु आराम से, कोई उसको खुशी नहीं, कोई उसको बड़ी प्रसन्नता नहीं और कुछ भी नहीं। उल्टा
यीशु क्या बोल रहा, शैतान को मैं उस तरह पृथ्वी पर गिरते हुए देख रहा था जैसे बिजली गिरती है। And Jesus said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. क्यों ऐसा कहा था? Why did Jesus say like this? क्योंकि शैतान भी फूल गया था, वो भी अपने अंदर अंदर फूल के घमंड करने लगा, और यही घमंड उसकी गिरावट का कारण हुआ। And the Satan also was puffed up and he was proud, and because of his pride he was fallen down. हाँ, इसलिए लिखा तेरी बुद्धि के कारण, तेरे लेन देन के कारण तू फूल गया, और यही तेरी गिरावट का कारण था। God says that because you were proud and you were puffed up, and that is the reason why you were pulled down and fallen. इसके बाद यीशु ने क्या कहा? After this Jesus said, इस बात के लिए खुश ना हो वो कि दुष्ट आत्माएं मेरे नाम से तुम्हारे वश में है, तुम हुक्म देते हो, यूं ही दुष्ट आत्माएं छोड़ के भाग जाती है। इस बात से खुश हो जाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। Here it is written that notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subjected unto thee, but rather rejoice because your names are written in heaven. अब इसका सीधा सा अर्थ क्या है? What is the direct connection with this? इसका सीधा सा अर्थ क्या है? What is the direct connection with this? जो तुम परमेश्वर के लिए करते हो उसमें खुशी मत मनाओ, परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए किया है उसमें तुम खुशी मनाओ। The things which God has given, you be happy in that, not that you rejoice in the things which you do. So जो व्यक्ति ये समझ लेंगे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, चाहे उसकी आत्मिक जीवन में सुखापन हो, चाहे वो परमेश्वर के भवन में आने पर, कलीसिया में आने पर कोई दर्शन ना देखे, परमेश्वर की आवाज ना सुने, उसके जीवन में कोई फल ना देखे, तथापि वो प्रभु में ये बोल के खुश रहेगा, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, उसमें वो खुशी मनाता रहेगा। He will rejoice in what? He will rejoice in the things which God has done for him, though he come to the church and have a dryness in his life, yet because he will be happy thinking of the things which God has done for him. ऐसा व्यक्ति सूखेपन के कारण भी निराश नहीं होगा। और आप सूखेपन के कारण क्यों निराश होते हो? क्योंकि आप जो प्रभु के लिए करना चाहते हो उसमें आप खुशी मनाना चाहते हो। What the things which you are doing for the Christ, you want to be happy in that, not thinking of the things which God has done for you. और मैं आपको कहता हूं, आप प्रभु के लिए करके उसमें खुशी मनाना चाहते हो, याद रखिए ये आपके लिए एक धोखा है। कारण इसी से आपको ये आश्वासन मिल जाएगा, ओह मैंने ऐसा किया, मैं वो किया, मैं वगैरह वगैरह किया, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। ये आपके लिए एक धोखा होगा। You will be under deception saying that I have done this for the Lord, I have done that for the Lord, and if you rejoice in those things, it will be only a deceiving thing. यही कारण है मत्ती 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जिन लोगों ने आके यीशु को कहा, हे प्रभु तेरे नाम से अब ये किया, वो किया, दुष्ट आत्मा निकाल दी, भविष्यवाणी की, वगैरह वगैरह काम किए, हमारे लिए भी खोल दे। उनको क्या कहा गया? तुम कौन हो, कहां के हो, मुझे नहीं पता। When we read in the book of Mark, we see that when the disciples went and they have cast down the devils and healed many sick, they come and say that, Lord, in thy name we have prophesied, in thy name we have cast devils, but God says that, I know you not, ye workers of iniquity. So ये लोग जो कुछ प्रभु के लिए कर रहे थे उसी में खुश थे, और यही इनके लिए कैसे प्रमाण व निश्चय की तरह था, ओह मैंने ये किया, वो किया, मैं तो जरूर स्वर्ग जाऊंगा, प्रभु के राज में जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया है। These people are happy with the things which they do. I have done this and I have done that, and they say that definitely I will go to heaven because of my works. So आप जो कुछ करना चाहते हो उसमें आप खुशी मनाने के लिए करना चाहते हो, और शैतान के धोखे में इस आश्वासन को पाना चाहते हो, ओह मैं स्वर्ग जाऊंगा। We will be thinking that we will be happy saying that I have done so much for the Lord, definitely I will go to heaven. इसलिए आप जो प्रभु के लिए करते हो उसमें खुशी ना मनाओ। The things which you are doing for the Lord, don't be happy in that. चाहे आप उसकी कृपा से कर रहे हो, You may be doing it by His grace you do things. चाहे उसके बल से कर रहे हो, By His strength you may do things. और चाहे उसके नाम की महिमा के लिए कर रहे हो, Maybe for the glory of God you may be doing. तो भी वो Even then. आपकी खुशी का कारण ना हो। And it should not be for your rejoicing. परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है
वो हमारी खुशी का कारण हो। What God is doing for us, that we should be happy. उसने हमारे लिए क्या किया वो हमारी खुशी का कारण हो। What He has done for us, that should be happiness for us. इसलिए हमको कहता है चाहे मेरे खेतों में भी अन्न ना उपजे, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित रहूंगा, उसमें मगन रहूंगा। अर्थात उसने मेरे लिए क्या किया है, यही मेरी खुशी है। Whatever the Lord has done for me, that is my rejoicing. I will rejoice in the God of my salvation. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. तीसरा पारिवारिक आशीष के बारे में लिखा है। The third thing is blessings in the family. पारिवारिक आशीष को दाखलता और जलपाई का पेड़ ऐसा नाम दिया गया है। The family blessings is compared to the wine and the olive. अगर आप 128 वचन उसका तीसरा वचन पढ़ोगे, 1, 2, 3 वचन पढ़ोगे, आप समझ सकोगे दाखलता और जलपाई ये पारिवारिक आशीष का प्रतीक है। 128 Psalm, when we see a third verse, we see about the family blessings there. कई बार हम कई परीक्षाओं में से जाते हैं, Many times you may be passing through trials. कई बार कई तरह के दुखों को कष्टों को हम सहते हैं। Many times we suffer certain difficulties and problems in life. जब हम कई तरह के दुखों में से कष्टों में से जाते हैं, तब हम सोचते हैं हमारा परिवार, हमारे बच्चे हमारे लिए दाखलता और जलपाई के पेड़ों की तरह हो। When we go through certain problems and difficulties, we desire that our children should be like wine and the olive. जैसे उदाहरण के लिए अय्यूब को देखिए, अय्यूब कई तरह के परीक्षाओं में से जा रहा था, विचार किया कि उसकी पत्नी उसके लिए दाखलता के समान हो। Job was going through different kinds of difficulties. He wanted that his wife should be like a wine. परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई बार हम दाखलता से जो फल चाहते हैं, जलपाई से जो फल चाहते हैं, हमारे दुखों में, कष्टों में, हमारी परीक्षाओं में वो फल हमें नहीं मिलेगा। Even in our difficulties and trials, we may be expecting fruit from the wine and the olive, but we will not get that. एक बंदा मेरे पास आया, Once a person came to me. मैं फेतों में था, एतवार की मीटिंग खत्म किया, मेरे पास आया When I was in the faith, one person came to me. और उसी समय मैं खाना खा रहा था। I was having my food. और खाना ऐसे था, ऐसे खा रहा था, एक रोटी सिस्टर लोग देती थी, जो भाई लाता था, एक रोटी लाता था, फिर 5 मिनट लग जाते थे दूसरी रोटी आने में। One person used to bring one roti, and for the second roti to come, it will take 5 minutes. ये आदमी आया मेरे पास, And this person came. मैं नहीं आपके चर्च में आना। I will not come to your church. मैं बोला क्यों? Then I said, why? आपके चर्च में कोई पूछता नहीं, कोई विश्वासी पूछता नहीं, कोई सेवक पूछता नहीं, कोई नहीं पूछता, इधर कोई किसी को ध्यान नहीं देता, मैं नहीं आपके चर्च में आना। Then he said that when I come to the church, no believer, no worker talks to me, doesn't inquire of my condition, I will not come to this church. मैं बोला इधर ऐसे ही चलता है, आना है तो आ जाए, नहीं तो नहीं। Then I इधर said, मैं बोला ऐसे ही होता है। Then I said, this is the condition here. If you want to come, you can come, or else you need not come. और मैं बार बार रोटी लाने वाले भाई को बोल रहा, ओ लेके आओ, ओ लेके आओ, रोटी नहीं आ रही थी जल्दी। And I was asking the boy to bring the roti. The roti was not coming. मैं बोला देख ला, इधर मेरा हाल भी यही है, एक रोटी आती है, फिर 5 मिनट के बाद दूसरी, मुझे चिल्लाना पड़ रहा है, मैं भी इधर ही जी रहा हूँ, आपको आना है तो आ जाओ, नहीं आना है तो फिर आपका मर्जी। Then I said, I also have to wait for this roti. So if you want to come, you can come, or else you cannot come. मैं बोला मेरा भी हाल ऐसे ही है। My condition also is like this. उसने देखा सचमुच पास्टर को एक रोटी के बाद दूसरी आने में टाइम लग रहा है, इसका हाल ऐसा है तो हमारा हाल भी ऐसा ही रहेगा। Then he said, if the pastor is facing certain difficulty, my condition also is like this. उसके बाद उसने चर्च नहीं छोड़ा, ना ही कंप्लेंट किया। After that, he never left the church, nor did he complain. कई बार हम ऐसी ऐसी परिस्थितियों में जाते समय चाहने वाले फल को दाखलता से और जलपाई से चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं मिलता, ये हमारी ठोकर का कारण हो जाता है। Many times when we pass through difficulties, we don't get fruit from the wine and olive. So this will be a reason for our offense. वो हमारी ठोकर का कारण बन जाता है। And that will become a reason for our offense. हम सोचते हैं, ओह मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वगैरह वगैरह नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, और मुझे जहां पूछा नहीं, वहां पूछा नहीं, इसने नहीं, उसने नहीं, वगैरह वगैरह हम कहते हैं। लेकिन
हम ऐसी परिस्थितियों में भी प्रभु में खुश रहना सीखना चाहिए. We say that the people don't inquire about us, people don't talk about us, this and that. But in this condition also we should be happy in the Lord. हमेशा हम ऐसी परिस्थितियों में भी खुश रहना चाहिए. In all such conditions, in all such situations, we have to be happy in the Lord. सो खुदा की कृपा से मैं घमंड के लिए नहीं कहता. 33 वर्षों से मैं सेवा में हूं. कई ऐसे रास्ते आए, कई बार ऐसी परिस्थितियां आई, लगभग ऐसा ही रहा, लेकिन हमेशा मैं अपने प्रभु में खुश रहा. इसलिए मैं आपको कहता हूं, हम आपको सिर्फ प्रचार नहीं कर रहे, खुद ऐसे अनुभव में जाते हैं. And I'm 30 years experience in this ministry. 33 years, 33 वर्ष, 33 years I'm in this ministry, and I have faced so many difficulties, problems, and in all these problems I have no complaints. I'm always happy and I rejoice in the Lord. कभी किसी पास्टर के पास जाके, पास्टर जी मेरे साथ ऐसा हो गया, मदर जी मेरे पास साथ ऐसा हो गया, इस सिस्टर ने, उस विश्वासी ने, उसने ऐसा किया. खुदा के फजल से कहता हूं, कभी किसी के पास जाके कोई भी शिकायत नहीं की. By the grace of God, I say that I never went in complaint saying that this person is like that believer is like that. I never complained. By the grace of God, I overcame. सो इसलिए हम करने आए नहीं, क्योंकि हम अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में खुश हैं. दाखलता में दाखे ना हो, अंजीरों में, जलपाई में धोखा ही हो, तो भी हम अपने प्रभु में खुश रहेंगे. That's why whether there is fruit, because no fruit in the vine or in the olive, I will rejoice in the God of my salvation. परिवार से, मनुष्यों से हमें मदद मिले व ना मिले, कलीसिया से हमें मदद मिले ना मिले, सेवकों से मदद मिले ना मिले, हम उसमें खुश रहेंगे. Whether we get help from the workers or from the church or from the believers, whether we get or not, we should always rejoice in the Lord. एक विश्वासी मुझे कहने लगा, ओह सेवादार हमारे लिए दुआ नहीं करते, इसलिए हम कैसे विश्वास में रहेंगे. Once one person said the workers are not praying for us, how can we be in faith? इसलिए तो हमें इधर उधर भटकना पड़ता है. Because of that we have to wander here and there. पहले के सेवादार हमारे घरों में आते थे, प्रार्थना करते थे वगैरह, ये था वो था. आजकल करते नहीं है, इसलिए हम भटक रहे हैं. Because the workers are not coming and visiting us, that's why we are going here and there. मैंने कहा विश्वास में जीने वाले के चाहे सेवक पूछे व ना पूछे, उसके घर आए चाहे ना आए, उसकी शुद्धि ले व ना आए, विश्वास में जीने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में विश्वास में जिएगा. The person who is in faith, whether the workers come or not, whether adverse situations, he will not depart from faith, but he will abide in faith. सो मैंने उसको कहा हम भी उसी विश्वास से जीते हैं. हमारी शुद्धि ली जाए अथवा ना ली जाए, हमें पूछा जाए अथवा ना पूछा जाए, और हमारे लिए जिक्र किया जाए व ना किया जाए, हम उस विश्वास में रहते हैं, क्योंकि हम सच्चाई को जान गए हैं. Because we know the truth and we will abide in the faith, whether people visit us or not, whether people care for us or not, we will be in the faith. सो हम दुनिया हमें पूछे, हमारी इज्जत करें, आदर दे, हमारे आगे पीछे हो, ये वो वगैरह वगैरह, उसके लिए हम लोग नहीं आए हुए. Whether the world honors us or respects us, whether the world goes before us or behind us, we will be not bothered about all these things. परमेश्वर ने हमें कौन से प्रेम किया है, उस प्रेम को समझ के हम उसके पीछे चल रहे हैं. We have to think of the love wherewith He has loved us, and we have to follow Him. इसलिए दाख लता में चाहे दाखे ना हो, जलपाई में भी चाहे कोई फल ना हो, तो भी हम प्रभु में खुश रहेंगे. Whether there is fruit in the vine or in the olive, we will rejoice in the Lord. चौथा, अंजीर के पेड़ के बारे लिखा है. Fifthly, we see about the fig tree. लिखा अंजीर के वृक्ष में चाहे फूल ना हो. Though there may be no fruit in the fig tree. अंजीर का पेड़ किसे दिखाता है? What does this fig show? हमें दिखाता है. It shows us. हम सब लोग अंजीर के पेड़ के समान हैं. We are all compared to fig trees. और हम में से कोई भी अपना आप खोना नहीं चाहता. Nobody wants to. कोई भी अपना आप नष्ट नहीं करना चाहता. Nobody wants to destroy their own self. जैसे उदाहरण के लिए, For example, आप अय्यूब की पुस्तक पहले अध्याय में पढ़ के देखिए. when we see from the book of Job, chapter 1, अय्यूब की पुस्तक, उसका माफ कीजिए दूसरा अध्याय, उसका 3 वचन से हम पढ़ते हैं. when we read from book of Job, chapter 2, verse 3, 3 वचन में लिखा, यहोवा ने शैतान से पूछा,
क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like unto him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil. यदि भी तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वो अब तक अपनी खराई पर बना है। Though you asked me to destroy him, he was in his integrity. सो अय्यूब ने अपना घर, परिवार, बच्चे, पशु, जानवर वगैरह वगैरह सब नष्ट कर दिए थे। Job lost his house, his wife, his children, and he has lost everything. शैतान ने परमेश्वर से क्या कहा? What did Satan say unto him? 4 वचन में शैतान कहता है, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले इंसान अपना सब कुछ दे देता है। Satan answered the Lord and said, Skin for skin, yea, all that a man hath will he give his life. 5 वचन में लिखा, केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस को छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। But put forth thine hand now and touch his bone and his flesh, and he will curse thee upon thy face. अगर एक इंसान अपना घर, परिवार, बच्चे, धन, संपत्ति वगैरह वगैरह नष्ट कर दे, लेकिन वो दोबारा इसको पा सकता है, मगर वो अपना आप खोना नहीं चाहता, अपनी सेहत को, अपने आप को नष्ट नहीं करना चाहता। A person can afford to lose his family, his health, his wealth and everything, but he will not afford that his body or his skin may be destroyed. हर इंसान चाहता है वो तंदुरुस्त रहे, वो सेहतमंद रहे, वो अच्छी तंदुरुस्ती में रहे। Every person desires that he should have good health. क्योंकि पहला राजा उसका 20 अध्याय 7 वचन के अनुसार अंजीर का पेड़ हमारी चंगाई, तंदुरुस्ती, अच्छी सेहत का नमूना है। 1 Kings chapter 20 verse 7 we see that this fig tree is compared with our health. सो इंसान अपने आप को नष्ट नहीं करना चाहता। A person will never desire to be destroyed. वो अपना जीवन को नष्ट नहीं करना चाहता। He does not want that his life should be destroyed. यीशु ने कहा था, जो अपना जीवन बचाना चाहेगा वो उसको खो देगा, लेकिन जो उसको मेरे लिए खोएगा वो उसको पाएगा। A person that loseth his life for my sake, he shall have his life. इसलिए अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे तो भी हम प्रभु में खुश रहना चाहिए। Though there is no fruit in the fig tree, I will rejoice in the Lord. इसका अर्थ चाहे हम बीमार हो, रोगी हो, निर्बल हो, अपनी सेहत को, अपने जीवन को खो रहे हैं, निराश ना हो, हम कदापि दुखी ना हो, ये क्या हो रहा है, प्रभु में खुश ये सोच के रहे कि मैं अपने इस शरीर के नष्ट होने पर भी पुनः अपनी आंखों से अपने परमेश्वर को देखूंगा। Though my body may be destroyed and it may be decayed, I might see my Redeemer with his eyes. सो ये हम समझ लेना चाहिए। We have to understand this thing. इसलिए संत पौलुस क्या कहता है, जीवित रहना मेरे लिए मसीह है, मृत्यु मेरे लिए लाभ है। That's why St. Paul says, for me to live is Christ and to die is gain. वो क्यों कहता है मृत्यु मेरे लिए लाभ है? Why does he say that death is a gain to me? फिलिपियों की पुस्तक 1 अध्याय का 23 वचन में कहता, जी तो चाहता है इस देश से अलग होकर परमेश्वर के पास जाओ, प्रभु के पास जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए देह में रहना चाहता हूं। He says that I desire to leave my body and go to be with the Lord, but for your sake I will be in this body. सो अगर आप इन बातों को समझ लोगे, आप बीमारी के कारण, रोग के कारण सेहत नष्ट हो रही है, जीवन नष्ट हो रहा है, आप कभी भी दुख नहीं करेंगे, आप खुश रहेंगे, चाहे मृत्यु हो चाहे ना हो। जीवित रहना भी मेरे लिए मसीह है, मरना भी मेरे लिए मसीह है, सब कुछ मेरे लिए लाभ है। When you understand these things, for you to live is Christ and to die is gain. Whether you lose your health, whether you lose your body, whether you face death also, you will always rejoice in the Lord. प्रभु हमें इन वचनों से आशीष करे। That God may bless us with these words. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God.